वेलकम एवरीवन इनटू दिस प्लेटफॉर्म एंड आपकी पेरेंटिंग जर्नी को इजी बनाने के लिए हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है रोल ऑफ प्री स्कूल इनटू द पेरेंटिंग। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी मिस अनुभा गुप्ता, जो कि पिछले 13 सालों से सिंस लास्ट 13 years सी इज इनटू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेगमेंट or and she is a founder of AK Smartshala as well as director of AK Children Play School, and she will be discussing some of the wonderful ideas with us जिससे कि आपकी parenting journey काफी अच्छी हो पाए। So without any further delay, let's dwell into the interview and understand how preschool can change your parenting. Yes, Anubaji, welcome. Anubaji from AK Smart Shala is with us, and thank you very much for taking a time and Spartan Kids के इस Spartan Parenting Academy के इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एंड मुझे लगता है कि हम काफी अच्छी अच्छी चीजें आज आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए आपके साथ हम डिस्कस करके हमारे व्यूअर्स के लिए उसको हम परोस पाएंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Yes, Anubaji. So, the very first question is, can you give us some idea about your journey as well as AK Smart Shala's journey, और वो कैसे unfold हुई? If you can, share something in brief. Sure, sir. So it's been like more than 13 years now in early childhood education. And it has been a wonderful journey working with small kids because you get to learn a lot from them on a daily basis. So it's a beautiful journey with lots of, learning and experience and insights. And as far as AK Smart Shala is concerned, AK Smart Shala came into the picture when other play schools were getting shut. Yes, we started AK Smart Shala during COVID era. And this time it was a it was a challenge for all of us how to make a 3-year-old sit in the online classes. So वो बहुत बड़ा challenge था. But then because of our interactive and innovative approaches in AK Smart Shala, we could do it. And classes were very interactive. And then we started getting response from others also. And we started AK Smart Shala at a pan-India level. So it was a nice journey. We started AK Smart Shala as online classes, and now we have switched this year. Yeah, AK Smart Shala is offline classes also. So online say offline, and already AK Smart Shala is like a fifth venture in AK Children Group of Schools. So already working since more than 30 years in the field of education and specialization of early childhood education for more than 13 years. तो काफी कुछ सीखने को मिला, और मैं ये बोलूंगी कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए. सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं. दैट शुड बी द फिलॉसफी. Wonderful. So, how did you came into the picture? मतलब आपकी लाइफ में आपको कब लगा कि आपको इसी नीश में मतलब बच्चों के साथ रहना चाहिए? आपको कब ऐसा फील हुआ? When you had this, options, मतलब एक आपका टर्निंग पॉइंट होगा जहां पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि whether you could go for the, engineering, or you could go for the MBA, you could go for, corporate job or something like this. So can you share something about it? मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ हुआ when I had my first baby and when he was like 3.5 years old. As a mother, I used to face like many challenges, and I used to be very clueless about parenting and all. कि किसको पूछें, क्योंकि at that time Google भी नहीं था इतना, and Instagram भी नहीं था, YouTube भी नहीं था इतना एक्टिव. तो हमें लगता था कि हम पूछें किससे. तो तब मैंने अपनी मदर से कहा, जब मम्मी तब प्रिंसिपल थे हमारे मदर ब्रांच में, एंड मम्मी से मैंने कहा कि कैन आई ज्वाइन यू, एंड मैं प्ले देखना चाहती हूँ. I don't want to run a CBSE school, I want to run a play school. तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन हमने प्ले पे वर्क किया, और मुझे छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके बहुत ही अच्छा लगा. तो मुझे लगा कि नहीं, यही एक एरिया है जिसमें मैं वर्क करना चाहती हूँ, और बस तब से आज तक मैं उसी एरिया पे वर्क कर रही हूँ, स्पेशलाइजेशन उसी में लिया फिर. जी सर. Wonderful, wonderful. Yes, Anupa ji. So मैं ये जानना चाहूंगा कि the concept behind the AK Smart Shala is something like close the book and open the mind of the child, right? Okay. ये concept कहाँ से आया first thing? Because हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई बुक्स जो है वो आपकी लाइफ बनाते हैं,
जी 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 दैट इज द कंसेप्ट। बहुत सारे लोग मतलब इसको फॉलो भी करते हैं, राइट। जी सर। एंड जी यहाँ पे आप कंप्लीटली कंट्रोवर्शियल बात कर रही है कि भाई बुक को क्लोज कीजिए और माइंड को ओपन कीजिए। सो व्हाट इज द फिलोसॉफी बिहाइंड इट? श्योर सर। सो सर, जब हम ये कह रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हम यहाँ प्री स्कूलर्स की बात कर रहे हैं, और जो बेस है, ये जो फाउंडेशन ईयर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ अबाउट अगर हमारी लर्निंग, हमारी टीचिंग इस पे हो कि हम बच्चे को सिखाएं हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। So basically, close the books is all about not, making a child learn what to think. हो क्या गया है सर, अभी जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है, हम बच्चों को रटवा रहे हैं कहीं ना कहीं। बुक्स ओपन होती हैं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज रेड इन कलर, बच्चे ने रट लिया। बच्चा आपसे ये क्यों नहीं पूछता है कि ये रेड ही क्यों है, ये येलो क्यों नहीं है, ट्रीज ग्रीन ही क्यों है, ट्रीज ब्लू क्यों नहीं है, स्काई ऊपर ही क्यों है और वाटर नीचे क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस जब बच्चे के दिमाग में आने लगेंगे, तो एक्चुअली में जो हमारा मिशन है टू क्लोज द बुक्स एंड ओपन द माइंड्स, वो अचीव हो जाएगा। सो ये बेसिकली एक हमारा मिशन है एक स्मार्टशाला में, कि हम अपने बच्चों को इंक्यूजिटिव बना सकें। अगर बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप उनको ठीक तरह से टीच कर रहे हैं, और अगर बच्चा सिर्फ वो रिपीट कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन कर रहा है जो आप उसको बता रहे हैं, then something somewhere is missing. So that is the whole concept of close the books and open the minds. We are not against the books. Definitely, books is the best friend ये कहा जाता है. Book is the best friend of any child or any human being. और मैं भी उसको बहुत strongly मानती हूँ. But हमारा close the books का concept है कि rote memorization should not happen. Learning should not only happen from smart boards or gadgets. It should happen from the surroundings. आप छोटे से बच्चे को अगर एक रेस्टोरेंट भी ले जा रहे हैं और टिश्यू पेपर से वो शेप्स बना रहा है, देन वहां पे एक स्मार्टशाला पिक्चर में आ रहा है। अगर आपके साथ बच्चा अभी बात कर रहा है और वो आपको बोल रहा है, अंकल ये ग्रीन ट्री है आपके पीछे, ये ब्लाइंड्स में क्यों बीच में स्पेस है, पीछे क्या रखा है आपने, देन लर्निंग हो रही। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा एक स्मार्टशाला। And I really like that concept because the other day I was reading one of the article and वो आर्टिकल था कि भाई हमारे जो एंशियंट कल्चर थे, जी जी हमारे हमारे हमारी जो संस्कृति थी, वहां पे जी जो गुरुकुलम होते थे वहां पे जी बच्चों को कैसे सिखाया जाता था। ओके, जी आई वाज लर्निंग दैट थिंग, आई वाज रीडिंग दैट थिंग, एंड वहां पे एक चीज आई कि इट वाज कंप्लीटली नॉट अ बुकिश। या डेफिनेटली द वेदास वाज द बुक, मतलब वो बुक थी, बट राइट इट वाज अ श्रुति। इट वाज नॉट लाइक कि फिजिकल बुक थी और जहां से आप पढ़ रहे हैं। जी ओके, जी 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 it was more about how you can invoke the question into the mind of the students. Okay, बिल्कुल बिल्कुल और सर। वो क्वेश्चन का आंसर वो खुद ढूंढे। Good today. हाँ, Yeah, that's the beauty of it. Yes, yeah, sir. that was the role of the guru, that was the role of the teacher, कि आप Right. उसको सवाल दे, सवाल का जवाब आपको बताए, आप उसको गाइड जी करें कि इस जी सवाल जी। को आप कैसे आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड टोटली। या समवेयर आप मॉडर्न अप्रोच के साथ उसी फिलोसॉफी को आप फॉलो कर रही है, ऐसा मुझे लग जी रहा है। जी 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 सर, हम ट्रेडिशंस को लेके चल रहे हैं विद अ मॉडर्न आउटलुक। ये बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत हम अपने ग्रुप ऑफ स्कूल्स में बोलते हैं वी आर नॉट अ वैलेंटाइन कल्चर स्कूल। So we don't believe in that kind of culture. We strongly and we proudly feel about Indian culture, rich Indian heritage and culture. लेकिन उसके साथ बच्चों में एक मॉडर्न आउटलुक कैसे क्रिएट किया जाए, वो जरूर कोशिश हमारी रहती है। Wonderful. So I would like to know one more thing that nowadays it is एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि बच्चे ना they are very glued with the screen. यस Okay, यस at home especially parents are feeling यस and उसी के साथ जो प्री-स्कूल्स है they are adopting lot of technologies like यस smart boards and all these things. That is again one kind of screen only, right? यस 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 So यस एक तरफ ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि एक तरफ हम ये प्रमोट करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे सीखे, और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी को वो इतने ग्लूड हो जाते हैं जी तब सर। पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट इज लीडिंग टू सम डिफरेंट थिंग कि जो हमें नहीं चाहिए, राइट। जी सो जी सर। हाउ यू सी दिस थिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्री स्कूल, कितना आपको लगता है कि वो वायबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है जो एक कॉमन गलती, मिस्टेक पेरेंट्स आजकल कर रहे हैं, वो करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन ड्यूरिंग द मील्स ऑफ द चाइल्ड।
when they are feeding the child, वो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। वहां से शुरुआत होती है एक एडिक्शन की टुवर्ड्स द मोबाइल। और जहां तक कि गैजेट्स टेक्नोलॉजी की बात है, मुझे ऐसा लगता है प्री स्कूलर्स दे आर टू यंग फॉर ऑल दिस। बिल्कुल होना चाहिए, हम सब अब एआई की जनरेशन में है, हमें बच्चों को बिल्कुल अवेयर करना चाहिए, बट देयर हैज टू बी सम एज फॉर इट। क्योंकि आप जब एक 3 साल के बच्चे को मोबाइल हाथ में दे रहे हैं और उसको थ्रू गैजेट्स पढ़ा रहे हैं या एप्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो होता क्या है सर, बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ना, वो बहुत कम हो जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इधर उधर नहीं ऑब्जर्व कर पाऊंगी, मैं इधर ही फोकस रखूंगी। सेम गोज विद चाइल्ड ऑल्सो। आपने जब उसको मोबाइल दे दिया तो जो उसकी पूरी दुनिया है वो उस मोबाइल में आ गई, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। तो अगर आप इनिशियल कुछ ईयर्स बच्चे को मोबाइल नहीं देते हैं, तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो मोबाइल नहीं देते हैं, उनके बच्चों को बाद में भी मोबाइल का एडिक्शन नहीं। दे आर ओके विद इट बिकॉज दे नो हाउ टू यूटिलाइज देयर टाइम। तो उनको वो वेज आते हैं। अब या तो वहाँ पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या बच्चे आपस में खेलने लगते हैं, या बुक्स पढ़ने लगते हैं, ब्लॉग्स बनाने लगते हैं। बट जिसको हमने मोबाइल दे दिया, उसको वो एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लगता है कि मोबाइल है तो लाइफ है, वरना नहीं। सो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को यहाँ पर एक एक डिसीजन लेने की, एक फॉर्मनेस की जरूरत है कि मोबाइल का जो इंट्रोडक्शन है वो किस एज में होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए। यस और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज में ऐसा कुछ मैं समझ पाया हूँ कि अल्टीमेटली जो छोटे बच्चे हैं, दे आर हंग्री ऑफ एक्सपीरियंस, दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। ओके, एंड होता यह है कि हम उसको, पेरेंट्स जो है वो टाइम नहीं दे पाते और उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस, वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते जहां पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। बिल्कुल बिल्कुल एंड वो चीज पूरी कर रही है मोबाइल। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, आई टोटली एग्री। तो अगर हम उस हंगर को पहचान ले कि भाई बच्चे को एक्सपीरियंस चाहिए, बच्चे को नया नया कुछ सीखने को चाहिए, बच्चे को एक एनर्जेटिक एक्टिविटीज अगर हम उसको दे पाए, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, जब हम छोटे थे, स्पेशली मैं अपनी बात करूं, जब मैं छोटा था तो वी हैड प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। हम ऐसा कुछ सीखने के लिए कोई जाते नहीं थे, जिम्नेशियम जिम्नास्टिक करने गए या फिर डांस करने गए, जो एक्टिविटीज अलग बात है। बट हम स्ट्रीट में बाहर बच्चों के साथ इतना खेलते थे कि हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते थे। देन वी आर नॉट हंग्री अबाउट एनीथिंग एल्स। इवन टीवी देखने का भी मन नहीं होता था उस टाइम, नहीं होता था। दैट्स बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, तो अगर पेरेंट्स ये समझ पाए, हमारे व्यूअर्स ये समझ पाए कि भाई मोबाइल जो है उसकी जगह एक्चुअली क्यों बच्चे कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि उसको एक्सपीरियंस चाहिए, तो अगर हम वो एक्सपीरियंस जनरेट कर पाए, देन दे कैन डेफिनेटली ओवरकम दिस इश्यू। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। वंडरफुल। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप पिछले बहुत सारे साल से, मोर देन अ डिकेड यू आर इनटू दिस फील्ड, आपको क्या लगता है कि सही में प्री स्कूल की जरूरत है भी या नहीं? बिकॉज व्हाट आई फील इज कि बहुत टाइम पहले ऐसा था कि हम जब 5-6 साल के बच्चे होते थे उस टाइम पे हम स्कूल में जाते थे, और आजकल ये ट्रेंड हो चुका है 2 साल का हो गया चलो उसको भेज देते हैं प्री स्कूल में, उसको कहीं ना कहीं पे एक्टिविटी सेंटर में कुछ ना कुछ मतलब करवाते हैं पेरेंट्स। एंड द रीजन बिहाइंड द सेम इज पेरेंट्स आर नॉट हैविंग मच टाइम एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, एंड दे वांट देयर चाइल्ड टू डेवलप। इंटेंशन अच्छा है, बट अगेन वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिवली इफेक्ट करता है या नेगेटिवली इफेक्ट करता है, दूसरे लोग उसकी जो टीचर्स है उसके लाइफ में आते हैं, बच्चों के लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे होता है, क्या उसके बारे में कुछ आप अपने थॉट्स बताएंगे? श्योर सर। सर सिलेक्शन ऑफ अ प्ले स्कूल और अ प्री स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये फाउंडेशन ईयर्स हैं बच्चे के, और जो इस टाइम बच्चा एक्सपीरियंस गेन कर रहा है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि उसके परसेप्शंस एंड नोशंस क्या बनते हैं अपने क्लासमेट्स को लेके, स्कूल को लेकर। इनिशियली मुझे ऐसा लगता है सर बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेटल होने में, बट एज का जो क्राइटेरिया है, अब एनईपी आ गया है और अभी जो एज क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगता है 3+ से पहले नहीं भेजना चाहिए बच्चे को स्कूल। 3+ का बच्चा इतना सेंसिबल हो जाता है कि एक तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन सुन सकता है, और दूसरा वो हमारे जो कही हुई बातें हैं उनको सही वे में परसीव कर सकता है। बट हैविंग सेड दैट सर, मैंने ये भी देखा है कि जो छोटे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं आजकल, जो बच्चों का एक आईक्यू लेवल है सर वो बहुत ज्यादा है। मदर्स हमारे पास आती हैं, हम मना करते हैं कि मैम बहुत छोटा है अभी, मदर्स कहते हैं कि मैम घर में भी खेले गए विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, विदाउट एनी सिस्टम, तो आप इसको यहाँ अलाउ कीजिए 1-2 घंटे के लिए तो कुछ सीखेगा ये।
तो वहां मैं कन्विंस होती हूँ कि हाँ, बात तो ये लोग ठीक कह रहे हैं। तो जो सर हमने सिस्टम बनाया है कि जो इनिशियल लेवल की क्लासेस हैं, एक तो वहां किसी भी तरह का करिकुलम प्रेशर नहीं होना चाहिए। The child should come, explore, play, follow the instructions and make friends. That's all. और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं यहाँ पर 2 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ। 1 मंथ तक तो बच्चा बिल्कुल क्लूलेस होता है कि उसको करना क्या है, वो सुनता ही नहीं है बात। बट बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ हम ये देखते हैं कि वो बैठने लगता है, बात सुनने लगता है, खाना खुद खाने लगता है। एंड पेरेंट्स दे गेट सो हैप्पी विद ऑल दिस कि हमारे बच्चे ने इतना कुछ सीख लिया। सो एक्चुअली दोनों पहलू हैं। एक जरूर मैं बात पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि इफ द चाइल्ड इज नॉट हैप्पी, if the child is continuously crying for more than 15 days, स्कूल जा रहा है and the child is continuously crying, and if the child is not happy, then उनको नहीं भेजना चाहिए। It should not be a pressure, a burden kind of a thing on the child. अगर बच्चा हैप्पी है, एंजॉय कर रहा है अपना टाइम, तो फिर वो ऑप्ट कर सकते वंडरफुल। और आपने जो लास्ट पॉइंट बताया वहां पे मैं आपको हैं। उसी से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। जी आई एम नॉट जी टॉकिंग अबाउट द वेरी यंग किड, मतलब 2 साल के बच्चे के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट द जी किड हु सपोज टू गो टू द स्कूल, मतलब जी जब जी स्टार्ट होना चाहिए, जी 4 साल 3 साल वट एवर, ओके, जी सर। उस टाइम पे बच्चों का जो लगाव होता है अपने पेरेंट्स से, अपने घर जी से, और जी उसकी वजह से ना वो प्री स्कूल मतलब जाने के लिए वो हेजिटेंट रेडी होते नहीं हैं, वो जी काफी टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, बहुत सारी चीजें जी होती है। इसको पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, फर्स्ट थिंग, एंड हाउ यू पीपल एक्चुअली हैंडल दिस। श्योर सर। सर ये जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है, दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेट इन ऑल द प्री स्कूलर्स। हमें 10 में से हार्डली 1 या 2 बच्चे दिखते हैं जिनको कोई स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती। और जब हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो हम ये देखते हैं कि उनके घर में थोड़ा सा रफ एंड टफ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है। वो बच्चे पार्क में बहुत इजीली जाते हैं, उनके पेरेंट्स पूरे टाइम उनके साथ साथ नहीं होते। तो वो बच्चे हम देखते हैं कि बहुत ही इंडिपेंडेंट रहते हैं एंड कॉन्फिडेंट रहते हैं फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। बट स्ट्रेंजर एंजाइटी कोई खराब चीज नहीं है, इट्स अ नेचुरल ट्रेट। क्योंकि प्री स्कूलर को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि अभी मम्मा गई है तो ये वापस आएंगे। उसके लिए तो मामा चली गई तो मामा चली गई, अब कहाँ से आएंगे नहीं पता। तो वो बहुत एंजाइटी बच्चे में क्रिएट करती है। सर हम इसको हैंडल करते हैं बाय गिविंग पर्सनल अटेंशन, बाय कीपिंग द चाइल्ड एंगेज। एक सिंपल सा जो मैंने देखा है स्कूल में, सैंड पिट एक्टिविटी। एक रोते हुए बच्चे को भी जब हम सैंड के पास बिठाते हैं तो वो बच्चा उसमें बिजी हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद बच्चे को फिर याद आता है, वो फिर रोने लगता है, फिर हम गेम चेंज कर देते हैं, एक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो ऐसे इनिशियली हम चेंज करते हैं एंड हम वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर, देन वी एक्सटेंडेड टू 1 आवर, देन 2 आवर, एंड इस तरह से हम करते हैं। एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न, पेरेंट्स को मैं बोलूंगी कि थोड़ा एक तो स्कूल पे ट्रस्ट करें इन ड्यूरिंग इनिशियल डेज। कि बच्चा रो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको कुछ कहा गया, दैट्स जस्ट अ नेचुरल ट्रेट द चाइल्ड इज शोइंग। सेकेंड, बच्चे से ये ना पूछें तुम रोए तो नहीं थे, तुम्हें मारा तो नहीं था। जो अक्सर पेरेंट्स गलती करते हैं, गेट पे पूछना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को ही लगता है अच्छा ये एक ऐसी चीज है जिससे मुझे अटेंशन मिलने वाली है मेरे पेरेंट्स से। तो उसकी बजाय बच्चों से पूछना चाहिए, आज आपने कोई न्यू फ्रेंड बनाया? अच्छा आपकी मैम का नाम क्या था? आपकी मैम ने क्या एक्टिविटी की आपके साथ? और धीरे धीरे वो इंटरेक्शन में बच्चा बता भी देगा अगर उसके साथ स्कूल में कुछ हुआ है। बट इट शुड नेवर स्टार्ट विद अ नेगेटिव थिंग, राइट। तो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं मदर्स की रेस्टलेसनेस को भी समझती हूँ, खुद मदर हूँ 2 बच्चों की, तो उस स्टेज से गुजरी हुई हूँ। तो हम पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा इंकरेज करते हैं उनको। उस टाइम पेरेंट्स को भी पैम्परिंग की जरूरत होती है और बच्चे को भी पैम्परिंग की जरूरत होती है। विद इन 15-20 डेज बच्चा और पेरेंट दोनों ही सेटल हो जाते ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल इनसाइट्स यू हैव शेयर्ड विद अस, एंड ये हमारे व्यूअर्स को काफी हेल्प करेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास काफी आते हैं। इनफैक्ट हमने एक वर्कशॉप भी किया था जी जी कि जी। हाउ यू कैन हैंडल दिस थिंग्स, ओके। अच्छा ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग। या मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ डू यू सी कि जो प्री स्कूल में जो एजुकेशन होती है और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, जी सर। प्री स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो उसके साथ बच्चे काफी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, जी राइट? जी जी एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे उनकी लाइफ में जो आने वाले फेजेस है एडल्टहुड में एंड आगे जाके वो जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें काफी मतलब ये रोल प्ले करता है। हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड आपको क्या लगता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर माय एल्डर वन की टीचर थी एक, पायल मैम। मुझे आज भी उनका नाम याद है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनल टच एंड पर्सनल केयर शी यूज्ड टू टेक एट दैट टाइम।
जब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, जब मैं अपने बेटे के लिए, जो आज 17 साल का है, और जब मैं उसके स्कूल में गई फर्स्ट क्लास में, और उन्होंने मुझे बताया आप ना इसको राइस भेजा करिए, इसको राइस बहुत पसंद है। एंड आई वाज लाइक टोटली गागा अबाउट द टीचर, कि जो टीचर इतना समझ जाए कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं। तो एक्चुअली सर, जो प्री स्कूल है वहां टीचर्स का ये रोल है। टीचर्स को पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि करिकुलम इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, दैट इज जस्ट अ पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है टू हैव दैट बॉन्ड विद द चाइल्ड। अगर एज अ टीचर आपको ये नहीं पता है कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं अपने स्कूल में बहुत बोलती हूँ ये अपनी टीम को कि इनको आईएएस नहीं बनाना इस एज, तो डोंट एक्सपेक्ट देम टू बिहेव लाइक दैट, यू नो। अगर आज मन नहीं है पढ़ने का तो नहीं पढ़ाइए। So preschool में we have this privilege to experiment a lot on a daily basis. And दूसरी चीज सर जो मिसिंग हो रही है इस टाइम स्कूल्स में भी घर में भी, वो है कम्युनिकेशन। हम बात नहीं कर रहे बच्चों से, हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हमें ना बच्चे का परसेप्शन नहीं पता चल रहा। उसके लिए बेस्ट एक्टिविटी है रोल प्ले। आप अपने बच्चे से कहिए अच्छा आज तुम मामा बन के दिखाओ, आज पापा बन के दिखाओ। यू विल लर्न अ लॉट अबाउट योर पेरेंटिंग स्टाइल। एंड ऐसे ही हम बच्चों से बोलते हैं अच्छा आज आप टीचर बन के दिखाइए, अच्छा आज ये वाली मैम बन के दिखाइए। तो जिस तरह से वो बिहेव करती हैं बच्चों से हमें पता चलता है। देन सर एक और बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अगर बच्चा स्कूल आ रहा है और टीचर को आते ही हक कर रहा है, देन इट्स अ वेरी लवली काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट। और अगर बच्चे की टीचर खड़ी है सामने और बच्चा साइड से निकल गया है, देन इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द पेरेंट्स, कि अगर ये हमारे सामने ही कंफर्टेबल नहीं है विद द टीचर, तो क्लास में तो इसके लिए कितना मुश्किल होगा। एक सर मैं एक और बात यहाँ बोलना चाहूंगी। स्कूल्स में बहुत कॉमन है टैगिंग। हम टैग कर देते हैं। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये नालायक है, अगर शरारती है तो ये बेवकूफ है। एंड वो टैगिंग पूरा 12th तक चलती है बच्चे की, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है सर, बच्चे तो बहुत फास्ट बदलते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर हम ये बोलें कि तुमसे नहीं होगा, एक तो ये तरीका है कहने का, और एक तरीका है तुमसे क्यों नहीं होगा बेटा, तुम तो कर सकते हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो famous quote says na sir, there is no bad student, there is always a bad teacher. I तो strongly believe in that, and there is no bad child, there is always a bad parent. So I'm a little biased towards the children. It might be a little bit harsh to understand for the parent to grasp this thing, but yes, it is very because Yes. बच्चे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, जो वो देखते हैं वही तो वो रिफ्लेक्ट है। दे आर जस्ट मिरर। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल अपने घर में रूडली बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा ना रूडली बात करेगा और टीचर्स से रूडली बिहेव करेगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड 99% केसेस में ये रहता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो रूडली बात कर रहे हैं। बात करें बिल्कुल। दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर, उसको लगता है कि दिस इज द वे आई एम टॉकिंग, दिस इज द वे आई एम बिहेविंग, दिस इज मी। ओके। यस यस यस। और उसके लिए आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, एंड इट वाज अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर मी व्हेन यू जस्ट सेड दैट थिंग, दैट रोल प्ले। रोल प्ले एज अ पेरेंट, बच्चों को बताइए कि भाई आज आपको मम्मी बन के बताना है, तो वो आपको इसलिए नहीं करना है कि बच्चा एंजॉय करे, वो बच्चा तो एंजॉय करेगा ही करेगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बट वो आपको ये जानना है कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, मैं कैसे कर, यस सर यस यस, बिहेव एज अ पापा, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ वो जानने के लिए आपको ये करना है। एंड या दैट वाज अ वंडरफुल बल्ब ऑन मोमेंट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू ब्रिंग अप वन मोर कंसेप्ट जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, एंड दैट इज होम स्कूलिंग। ओके, ज्यादातर लोग स्पेशली मैंने देखा है मेट्रो सिटीज में, मेगा सिटीज में, और आजकल तो छोटे से टाउन में भी होम स्कूलिंग ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। एंड उसका रीजन क्या है और क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड स्कूल्स उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट? कैन यू शेयर समथिंग अबाउट इट? यस सर, होम स्कूलिंग हम सबने एक्सपीरियंस करी है कोविड के टाइम में। और जहां तक प्री स्कूलर्स का सवाल है, देखिए होम स्कूलिंग अनटिल अनलेस इट्स द नेसेसिटी फॉर द पेरेंट्स और बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आई वुड नॉट सजेस्ट फॉर होम स्कूलिंग फॉर द प्री स्कूलर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि स्कूल जो है वो सिर्फ एक करिकुलम नहीं है। स्कूल हैज अ लॉट टू टीच टू द चाइल्ड।
बेसिक सी चीज सर, लाइन बनाना भी स्कूल में बच्चा सीखता है कि कैसे एक लाइन में खड़े होना है एंड कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है, मे आई स्टेप इन कैसे बोलना है। ये सारी जो चीजें बच्चा सीख रहा है। देन दूसरा बच्चा क्या लेके आया है, एट टाइम्स हम देखते हैं कि बच्चे को लगता है मेरे फ्रेंड का जो टिफिन है वो ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे कैसे अपने बच्चा अपने मन को समझा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक स्कूल में बच्चा सीखता है। कोविड में सर अगर आपने देखा हो तो क्लासेस तो हो गई थी, बट इमोशनली और एथिकली मॉरली बहुत सारी चीजें बच्चे नहीं सीख पा रहे थे उस टाइम, जो कि सीखनी चाहिए। और अब हम बहुत ज्यादा चेंज देखते हैं सब बच्चों में। हमें जब कोविड के बाद स्कूल्स खुले, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बच्चे ऐसे थे जो असेंबली भी नहीं अटेंड कर सकते थे, दे वर सो वीक, वो खड़े नहीं हो पाते थे। और प्रेशर नहीं ले पा रहे बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन में तो क्या है, सब मामा साथ में बैठी है, होमवर्क आ रहा, मामा ने बता दिया, बच्चे ने कर दिया, तो जो बच्चे का एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो उतना हो ही नहीं रहा है। तो बहुत रिलैक्स मोड हो जाता है होम स्कूलिंग में। बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग भी है। मैं उनको जरूर अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि कई बार सब पेरेंट्स नहीं भेज सकते, नहीं भेजना चाहते, तो वो लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई एज सच कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं है तो पेरेंट्स को रेगुलर स्कूल जरूर ऑप्ट करना चाहिए, स्पेशली फॉर प्री स्कूलर्स। हायर क्लासेस के लिए होम स्कूलिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यस डेफिनेटली। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि जो बाकी की सारी चीजें वो तो घर पे बच्चा सीख ही रहा है एट दिस एज। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 to 5 years। ओके, उस टाइम पे घर पे बाकी की सारी चीजें तो वो सीख ही रहा है। यस। जो सोशल स्किल्स उसके पास जी होनी चाहिए, जी वो एक प्री स्कूल में जाके ही उसको ज्यादा पता जी चलती है कि भाई दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, जी दूसरे जी एल्डर्स है, टीचर्स जी वगैरह या फिर नैनी वगैरह जो कुछ भी होते हैं जी स्कूल में, जी उसके जी साथ कैसे जी बिहेव करना चाहिए, वो बिल्कुल सारी चीजें वो बिल्कुल वहीं से सीखता है। और वो बिल्कुल। आगे जाके पूरा शेप करता है, बिकॉज अल्टीमेटली द कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग। हम अकेले नहीं रह सकते, राइट? हमें यस किसी ना यस। किसी से बात करनी है, किसी ना किसी बिल्कुल से डील करना है। बिल्कुल। और उसी के लिए ये ना एक स्टेपिंग स्टोन होता है, एक फाउंडेशन होता है बच्चे के यस लिए कि वो यस। अपनी लाइफ को कैसे लीड करेगा, राइट? बिल्कुल 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 सर। That, बिल्कुल that was बिल्कुल। wonderful. With this, I would like to ask you the last question. What would be the best parenting tip, according to you, for today's parent? मतलब आज के जो पेरेंट है, जेन जी के जो पेरेंट्स है, उसके लिए बेस्ट टिप क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? So according to me, the best parenting tip is no parenting tip. Okay. बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद बहुत पेरेंटिंग टिप्स शेयर करती हूँ, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, पेरेंटिंग टिप्स आर ऑलवेज गुड टू सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट टू फॉलो देम इज वेरी डिफिकल्ट। सो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, सुन के इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे। बट जब हम वापस अपने बच्चे के पास आते हैं तो वी बिहेव द वे वी बिहेव। सो पेरेंटिंग टिप अगर आपको कोई दे सकता है तो वो आपके अपने पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने आपको एज अ बच्चा देखा है और अब एज अ मदर देख रहे हैं, फादर देख रहे हैं। एंड आपका बच्चा, वो आपको बेस्ट पेरेंटिंग टिप दे सकता है अगर आप उससे बात करते हैं तो। पहले बेड टाइम स्टोरीज को बहुत बड़ा माना जाता था, वो कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा प्रोपोगेट होता था, हम जब छोटे थे दादा दादी कहानी सुनाते थे। आजकल वो मिसिंग हो रहा है। तो अगर पेरेंट्स के पास नहीं टाइम है तो एटलीस्ट वो एक डेली रिचुअल कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बच्चे से बात कर लें सोने से पहले। एक तो उस टाइम सब रिलैक्स्ड होता है, एंड बात भी कैसे होनी चाहिए, आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकला, लेकिन ना आज ये हो गया मेरे साथ, आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए था? देन द चाइल्ड विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ मम्मा आप ना ऐसे ही करते हो, हाँ मम्मा पापा ना बोल देते हैं ऐसे। तो बच्चा वहां पे बात करना शुरू कर देता है। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, टॉडलर्स, इतनी अच्छी स्पीच है इस टाइम टॉडलर्स की, इवन दे कैन एक्सप्रेस अ लॉट कि उनको क्या फील हो रहा है। वो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं बट वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करना शुरू करें बच्चों से, वी विल गेट ऑल द पेरेंटिंग टिप्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम आवर चिल्ड्रन ओनली। तो बच्चे से बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, बट तभी फायदा है उसका जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि खुद अपने अंदर झांकें कि एज अ पेरेंट हम कहाँ हैं, क्योंकि हमें पता होता है हम कहाँ गलत हैं। कई बार नहीं कर पाते सब बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बट अगर हम उसको रियलाइज भी कर लेते हैं कि एज अ मदर मैं ये गलती कर रही हूँ बार बार, देन वहां से शुरुआत हो जाती है इम्प्रूवमेंट। I got one of the wonderful insight from this discussion.
जो आपने जी अभी लास्ट में बताया। जी तो सर। वन थिंग इज, पेरेंट मस्ट बी अवेयर, उसको यस पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। जैसे मैंने अभी यस, अब आप कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई कि पेरेंट को पता ही नहीं है कि वो रूडली बिहेव कर रहा है। पता ही नहीं है। तो जी सर आपकी जी। अवेयरनेस पहले बढ़ानी है, पेरेंट्स को अपनी अवेयरनेस पहले बढ़ानी है। एंड सेकंड थिंग इज, वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बेस्ट टूल क्या है, दैट इज कि आपका जो बच्चा है वही आपका गुरु है। मैंने एक बुक भी पढ़ी थी उसके ऊपर, बिल्कुल द ऑथर बिल्कुल। वाज मिस्टर मनोज लेखी, अबाउट अच्छा। पेरेंटिंग। योर जी। चाइल्ड इज योर गुरु। यस सर यस सर यस आपका बच्चा ही आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना है, राइट? यस सर यस So सर there is nowhere else you need to go, definitely. यस। हाँ, if you really aware, हाँ, समझनी चाहिए सारी चीजें, और देखनी चाहिए कि वो कितनी इम्प्लीमेंटेबल है। यस बट हाँ, आपको ये भी देखना है कि आप खुद अवेयर रहें, और आपने अपने बच्चे जो है अपने बच्चे से सीखे, उससे जी। बढ़िया टीचर आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। मिलेगा नहीं। जी जी एंड बिल्कुल। यस, सो दिस वाज द वंडरफुल इंसाइट जो मैंने अभी आपसे सीखा है। एंड डेफिनेटली आई यू नो कीप इट इन माय नोटबुक्स, जैसे कि मैं ना आगे भी उसको यूटिलाइज कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yes, Anubaji. So with this, thank you very much on the behalf of Spartan Kids. But before we go, I जी। would like you to share your Instagram handle, ताकि हमारे पेरेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको अगर कुछ भी जानना है आपसे, आपको अप्रोच करना है, आपसे बात जी करनी है, कोई जी क्वेश्चंस है उसको, राइट? जी तो वो आपके जी। पास आ पाए, आपके साथ कनेक्ट हो पाए, तो यू कैन शेयर योर Instagram handle and yes, anything else also, YouTube channel, whatever. Sure, sure. It's very simple at AK Smart Shala. They can search us out, and we have a page dedicated for worksheets also क्योंकि बहुत demand आती है parents की. So AK Smart Shala worksheets also they can search. And then we have like all the school activities at AK Smart Shala, Saibabad, Ghaziabad. So they can reach out to us, and it would be a pleasure interacting with the parents. It was a pleasure interacting with you, sir. I also get many insights. और ये सी अगेन मैं वही उसी बात पर आती हूँ, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो हम सीखते हैं। जब वो बातचीत बंद हो जाती है तो हमारी जो लर्निंग है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। Wonderful. Great, great. Thank you very much on behalf of Spartan Kids, and we would really like to invite you in such kind of conversation in future श्योर also. श्योर और सर हम श्योर। डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचना पहुंचना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।